Namaskar viewers, hello and welcome to Sunset TV. I'm Tina Jha, you're watching Perspective. The Commonwealth Games will return to India after a gap of 20 years with Ahmedabad named the host city of the 2030 Commonwealth Games. Delegates from 74 Commonwealth member nations and territories approved India's bid, after which the announcement was made at the Commonwealth Sport General Assembly in Glasgow on Wednesday. Now, this marks a significant moment for India as this is the first time after 2010 that Commonwealth Games will be held in the country. Also, the 2030 edition of the Games marked the centenary of the Commonwealth Games. The first Commonwealth Games were held back in 1930 in Hamilton, Canada. Welcoming the announcement, Prime Minister Narendra Modi said in a social media post that winning the bid reflects the country's collective commitment to sports. He added that India looks forward to welcoming the athletes and delegates from across the Commonwealth. The Prime Minister also stated that India has been placed firmly on the global sporting map through sustained progress in sports development. Union Home Minister Amit Shah called it a milestone for India's journey towards becoming a global centre for sports. He attributed the achievement to strengthened sports infrastructure and administrative efficiency over the last decade. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia, also described it as a landmark moment for Indian sports, expressing gratitude to Commonwealth Sport for selecting Ahmedabad as the host city for the Centenary Commonwealth Games 2030. He said this honour reflects India's growing stature in global sport, guided by the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, whose tireless dedication has brought India to the forefront of the world's sporting landscape. So while it is a matter of immense pride for India to be hosting the 2030 Commonwealth Games, which mark 100 years of its journey, we take a moment to discuss how motivating it is for the country's sporting community. Joining us today is a diverse panel from the sporting fraternity of the country who will share their views with us. It gives me immense pleasure to welcome in the studio Mr. Manoj Dhankar. He's a sports coach of the national wrestling team. Besides, he's also an IRS officer. Mr. Dhankar, thank you for your time. Welcome to Sunset TV. And joining us virtually is Ms. Babita Phogat. She needs no introduction. You all already know her. She's been a wrestling champion, brought laurels to the country. Babita ji, thank you for your time. Welcome to Sunset TV. Thank you. And finally, Ms. Poonam Beniwal. She's a Senior Development Officer, TOPS, from the Sports Authority of India. Poonam ji, absolute pleasure to have you on the program as well. Glad that you could take out some time to join us on the telecast and share your views with us. So to begin with, Manoj ji, your views. 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी हम कर रहे हैं. ऐसे में होम एडवांटेज कितना होगा भारत के स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए? शुरुआत उससे करते हैं. जी, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे देश के गौरव की बात है कि हमें 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट मिला है. और एक एथलीट्स के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि उसका एक होम क्राउड्स मिलता है, हमें एक होम क्लाइमेट्स मिलता है. और जैसे अदर कंट्रीज में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो लोग टीवी पे देखते हैं. अब लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, जाके खुद अपने बच्चों की फाइट्स गांव से जितने भी शहर के लोग हैं सब प्रैक्टिकली देखेंगे. एक जोश आएगा, एक लोगों में रुझान बढ़ेगा स्पोर्ट्स का. जैसे 2010 के बाद लोगों में एकदम मेंटलिटी चेंज हुई थी कि भी स्पोर्ट्स भी एक कैरियर है. देन उसके बाद अब ऐसा लगता है कि भाई किसी का बच्चा खेल रहा है स्पोर्ट्स, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके मदर फादर सामने बैठ के देखेंगे, उसके गाँव के आदमी सामने बैठ के देखेंगे. देन ऐसे एक मैसेज जाएगा हर गांव हर शहर में कि भाई स्पोर्ट्स पे एक कैरियर है, एक स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ेगा. बिल्कुल, इंडियन स्पोर्ट्स के लिए ये अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पल है. बबीता जी, आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर. ऐसे में कॉमनवेल्थ गेम्स का 20 साल बाद भारत में लौटना खिलाड़ियों के लिए भावनात्मक रूप से कितना बड़ा पल है? सबसे पहले तो देखिए, मैं सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और स्पेशली आभार मैं व्यक्त करूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व के अंदर कॉमनवेल्थ 2030 गेम्स की जो मेजबानी करने का हमारे देश को मौका मिला है, ये सिर्फ उनके दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित हो रहे नए भारत का ही प्रतीक है और उन्हीं का परिणाम है. तो मैं स्पेशली प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ. और एक खिलाड़ी के रूप में अगर मैं पर्सनली अगर मैं कहूँ तो एक खिलाड़ी के रूप में हमारे लिए ये बहुत बड़ी सम्मान और बहुत प्रेरणा मैं दोनों ही मानती हूँ कि और ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का क्षण है.
आप ऐसे राज्य से आती हैं बबीता जी जहां सीमित रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट देश को कई सारे चैंपियंस भी दिए हैं। इस उपलब्धि से देश भर की बेटियों को क्या संदेश जाता है? खास करके अगर मैं महिलाओं के दृष्टिकोण से बात करूं तो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए अपने होम क्राउड में, अपने घर परिवार के बीच एक रिप्रेजेंटेशन देना, क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाते हैं तो सबको अपने साथ ले जाना संभव नहीं हो पाता है। सारे लोग टीवी पर बैठकर देखते हैं, पर जब देश में होगा तो संभवतः कई परिवार के लोग होंगे जो फेस टू फेस आपको परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो वो कितना मनोबल बढ़ाता है स्पोर्ट्स पर्सन्स का? देखिए, अपने ही देश के अंदर इतने बड़े खेल आयोजन में भाग लेना, मैं मानती हूँ हर खिलाड़ी का सपना होता है। और जब हमारे देश के लाखों युवा खिलाड़ी इस सपने के साथ यहाँ पे तैयारी करेंगे और अपनी ही धरती के ऊपर मेडल जीतने का उनको मौका मिलेगा और अपने भारत देश के लिए वो मेडल जीतेंगे, तो वो प्रेरणा से भरे हुए वो खिलाड़ी होंगे, ऊर्जा से भरे हुए खिलाड़ी होंगे, और अपने देश का जो क्राउड जो होता है वो उनका मनोबल बढ़ाएगा। तो निश्चित रूप पे उनका आत्मविश्वास जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और जिस खिलाड़ी का अगर आत्मविश्वास बढ़ा हुआ हो तो उसको कहते हैं कि कोई नहीं हरा सकता। तो वो वाली प्रेरणा खिलाड़ियों के अंदर जगती है और वो ऊर्जा उनको मिलती है। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही पूनम जी। नाउ द एक्सपेक्टेशंस have galore because it is not just an opportunity for the sporting fraternity of the country. There are also huge expectations going to be from the people of this country that when you are performing in your home country, there is obviously a home advantage. We expect the performance to be absolutely brilliant from the sports person side. We have the next 5 years to prepare ourselves to meet those expectations. Going forth, how will you ensure that the rising athletes are given the right opportunity and the right kind of support from the administration? See, whenever it comes to expectations, especially for the top athletes in our country, they have proved their level best. We have many examples from wrestling, boxing, athletics. So we have role models and they have done their best. And when it comes to India, so it will give a huge boost for the sports culture. And literally it will make Ahmedabad a global stage, we can say. And as far as performance and preparation for coming Commonwealth Games is concerned, before that we have got 2026 Commonwealth Games. We have like near to prepare for that. And there will be many more games which are not in 2026 and will be in 2030. You can take the example of wrestling. Like we have so many medals from wrestling. We have got 2 wrestlers on panel. They will be more than happy if there will be wrestling in 2020-30. So I mean, when the wrestlers will perform, and it's we can say most popular sports, one of the most popular sports in India. So this is going to be a huge boost. And as far as preparation is concerned, so TOPS, apart from TOPS, ACTC and every NSDF funding will be there for the preparation of Commonwealth Games. And as far as national camps are concerned, they are on the way. And when it comes to 4-year plan, so it Commonwealth Asian Games becomes in between the middle cycle of the Olympic Games. They are not only the major competition, they are the benchmark competitions for the upcoming 2020, 2028 and 2032 Olympic Games. So I mean, this is a huge opportunity for us for prepare upcoming Olympics. And as far as performance of our athlete is concerned, I'm damn sure we are going to give our best in the 2030 Commonwealth Games. Certainly, we look forward to it. I've heard several sports persons say that there is no dearth of talent across the country. We are a vast country and there is talent in every nook and corner of the country. But what's important is to identify and provide the right kind of support at the right time. That's crucial when it comes to the sporting disciplines. We have 5 years, so ahead of 2030 when we talk about preparation, in terms of talent identification and in terms of high performance support, how are you going to scale up your operations? See, as far as the performance in major competitions like Olympic Games, Commonwealth Games and Asian Games, these are, athletes are already there at their high performance age. So as far as talent identification is concerned, it's already in the pipeline. And the athletes who are at the brink of transition to senior level and who are already there in senior level are going to perform. And these athletes are already adopted in TOPS scheme. We have got TOPS core scheme, TOPS development scheme. And how many times we have discussed, we have got the tag as well.
target Asian Games. So same athletes are going to perform in the Asian Games and Commonwealth Games. So already preparation are on line and length. So we have just to wait, when our athletes are going to perform in the Ahmedabad. Certainly. We're looking forward to it. We have huge expectations. Since you spoke about the support to the athletes and the right kind of opportunities being given to them, let me widen the horizon, Manoj ji. एक कोच के नज़रिए से, और जब सरकार ये कहती है कि पिछले एक दशक में खेल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं और जिनका रिजल्ट भी हम देख रहे हैं, एक कोच के नज़रिए से ख़ास करके खिलाड़ियों को किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और कुश्ती के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो कहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है खिलाड़ियों में? देखिए, मैं एक रेसलिंग से आता हूँ तो मैं रेसलिंग की बात करना चाहूँगा कि 2008, 2012, 16, 20, 24 हर ओलंपिक गेम्स में रेसलिंग का मेडल आया है, और 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में 18 वेट कैटेगरी थी हमारी, तो 16 मेडल्स हमने रेसलिंग में दिए थे। और एक खुशी की बात यह है कि अब ग्रीको रोमन स्टाइल्स हमेशा रेसलिंग कॉमनवेल्थ गेम्स में कम ही पार्टिसिपेट हुई थी, एक बार 2010 में पहली बार हुआ था, और अब उम्मीद है कि 2030 में इंडिया होस्ट कर रहा है, तो ग्रीको रोमन स्टाइल इंडियन जो कुश्ती की ग्रीको रोमन स्टाइल होती है उसमें एक पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा रेसलर्स को। एंड देन उम्मीद है कि रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, इसमें हमेशा हमारे मेडल्स आ पाए हैं। पिछली बार इंडिया के 101 मेडल थे, तो अब की बार उम्मीद है कि बिल्कुल, रेसलिंग एक ऐसी कैटेगरी है जिससे हमेशा ही कई सारे मेडल्स की उम्मीद रहती है। बबीता जी, जिस टाइम पर आप थी उस टाइम से अभी जब आप देखती हैं कि जिस तरह के बदलाव आए हैं, क्या अंतर महसूस करती हैं आप, खास करके खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरह से पूरे इकोसिस्टम में बदलाव लाया गया है, जिस तरह से कई सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं पिछले कुछ सालों में, किस तरह का अंतर आप देख पाती हैं? ये मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ अंतर मैं ही नहीं, पूरा देश इस अंतर को समझ रहा है, और हर एक खिलाड़ी जो है वो इस अंतर को भी देख पा रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हो, चाहे खिलाड़ियों को हर वो सुविधा उपलब्ध करानी हो, या उनके रिहैब का सिस्टम हो, कोई भी हर एक चीज जो एक ओलंपिक मेडल जीतने के लिए खिलाड़ी को जो सुविधाएं चाहिए, वो सरकार ने हर एक चीज पे बहुत बारीकी से काम किया है, और खिलाड़ियों के उन सब चीजों को डिटेल में, उन चीजों को समझते हुए उन सब चीजों के ऊपर काम किया गया है, और उस चीज को इम्प्लीमेंट करना इतने शॉर्ट टाइम में, मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी का परिणाम है कि आज चाहे कुश्ती हो, चाहे हॉकी हो, चाहे बॉक्सिंग हो, रिसेंटली आपने बॉक्सिंग में देखा है कि कितने वर्ल्ड कप के अंदर कितने मेडल हमारे देश ने जीते हैं। तो हर एक गेम जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और देशवासियों की उम्मीद जो है वो भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारे खिलाड़ियों से, जिस तरह से हमारे खिलाड़ी मेहनत करके मेडल जीत के लेके आ रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भरपूर मेडल हमारे भारत देश को मिलने वाले हैं, और बहुत अच्छी तैयारी हमारे खिलाड़ी इस सपने के साथ करेंगे कि हमें अपने देश के अंदर, भारत देश को गोल्ड मेडल जीताना है। When we talk about transformation, Ms. Beniwal, would you like to elaborate on some transformative steps that you think have been taken in recent years and which are showing results on the ground in terms of the performance of the athletes, in terms of how they're taken care of, but also those who are unable to make the cut, maybe for them not to get disheartened, but keep practicing with more hard work for the next time? In the last decade, we can say the initiation of the TOP scheme. Then after that, Khelo India, and the Khelo India, under Khelo India, there is a women's vertical. So there are specific women-specific sports organization for the promotion of women's sports in India. So we have got good results from there only, because if we see the medals, number of medals, women are doing well. I mean, government has taken initiative to start the women-centric games, and Khelo India, we have women's vertical, women's league is there, and apart from that, the Khelo India scheme is there, under which, I mean, grassroots kids are over 3,000, around 3,000 kids have been adopted by Khelo India scheme, and 10,000 per month stipend is provided to them. And they are not the athletes who are at a high performance stage, they are athlete 12-year, 13-year, who can, use that money for their progression in their specific sports. Then after that, TOPS development scheme is there, TOPS core scheme is there. In development scheme, kids are having
25,000 per month stipend. Then in core scheme, they are getting 50,000 per month stipend. And recently we have started Target Asian Games. And these are only these schemes are only for the athletes like who are going to represent India in such specific major competitions. So these are preparation for high performance stage. Apart from that, in the recent decade, what transformation we have seen when we used to play and now when we are coaching and doing the administration. These days, everyone is like the sports fraternity is on the line. Like we should be athlete centric, coach driven, sports science is supported, and IT managed. So last two contents are very progressively progressed. Sports sciences is concerned, I mean, Manoj ji and Babita ji will agree with me. When we used to play, we were like, we were not aware about the physiotherapy, everything. Now you have got physiotherapists at the grassroots level, right? Looking after this STC Hisar. So there is like JSW and Psy collaboration scheme. And there are 4 or 5 physiotherapists, international level physiotherapists working with the girls who are like 12 year, 13 year old. So we have got excellent sports sciences facility across India in various schemes. National Center of Excellence are there. And we have got sports sciences over there. And as far as IT management is concerned, we have got various softwares who provide specific support in coaching. So we are on right track. And as my two colleagues explained, we are going to have a good medal count in upcoming 2026 and as well as 2030 Commonwealth Games. Okay, let's keep our fingers crossed. But मनोज जी आपसे भी एक राय ले लेती हूँ कि जो बाकी दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि अब जो खिलाड़ियों को जो सपोर्ट दे रहे हैं वो सिर्फ कोचिंग तक सीमित नहीं है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत न्यूट्रिशन, फिजियो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी उनको दे रहे हैं और ग्रास रूट लेवल तक भी वो जा रहा है, जैसा पूनम जी ने बताया। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, बट अगर एज अ कोच आप बता पाएँ कि हाउ क्लोज आर वी टू becoming a global sports science ecosystem, मतलब कह सकते हैं कि भारत दुनिया के मानकों से कितनी दूर है या कितने पास हम वहाँ पहुँच चुके हैं जब हम अपने आप को डिस्क्राइब करें कि वी हैव द बेस्ट फैसिलिटीज़ और हमारे खिलाड़ियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बेस्ट फैसिलिटीज़ यही हैं ट्रेन करने के लिए। देखिए पूनम जी ने बताया कि ग्रास रूट से खेलो इंडिया की स्कीम, जो उन्होंने अमाउंट्स भी बताए कि इतने अमाउंट्स से मिलते हैं खिलाड़ी को, और देन अभी पहले जो कैंप लगते थे उनसे अब कैंप्स में आप जाइए कि नेशनल टीम का कैंप कभी आप विजिट कीजिए, वहाँ पे न्यूट्रिशंस की भी सुविधा है, सप्लीमेंट्स फूड भी दिया जाता है। देन पहले फिजियोथेरेपी बहुत कम देखने को मिलती थी, अब हर स्टाइल में, जैसे रेसलिंग 3 स्टाइल है तो वुमेन में अलग से फिजियो है, ग्रीको रोमन स्टाइल अलग है, फ्री स्टाइल अलग फिजियोथेरेपिस्ट है। तो देन उसके बाद जो सुविधाएं पहले जो 10 के बाद जो देश में जितनी भी एक क्रेज़ बढ़ा है कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद कुश्ती का, जितनी फैसिलिटी बढ़ी है, मतलब पहले मैं 2006 एशियन गेम्स में गया था, फर्स्ट टाइम मेरा पहला एशियन गेम्स था। तो देन वहाँ पे कैंप में एयर कंडीशंस हॉल भी नहीं होते थे उस टाइम, कि हमें अच्छा इक्विपमेंट भी नहीं मिलता था, एक अच्छा जिम भी नहीं होता था। लेकिन आज के दिन तो ऐसा है कि सिर्फ आप कीजिए, आपको फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है। पूनम जी खुद शाही में इन्होंने काफ़ी टीम भी बाहर भेजी है इन्होंने, एंड कोई भी फैसिलिटीज़ होती है तो इनसे प्रोवाइड हो जाती है। तो अभी तो फ़िलहाल है कि हमारा फोकस जो है वो एथलीट का फोकस सिर्फ मेडल पे है, और ऐसा कोई एथलीट्स नहीं है कि भाई कोई किसी फैसिलिटी के बगैर उसको अगर प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो कई तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कई तरह का सपोर्ट मिल रहा है, जो चीज़ें पहले बड़ी मुश्किल से मिलती थी उनको बहुत इजीली और रेडिली अवेलेबल कराया जा रहा है खिलाड़ियों के लिए। तो बबीता जी, अगर 2030 तक अब हमारी तैयारी को तेज़ करने के लिए कोई एक चीज़ है जिस पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो आपकी नज़र में क्या होगा? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, एथलेटिक सपोर्ट, इन सब का तो काफ़ी ध्यान रखा गया है, पर एक तरह से एक मेंटल कंडीशनिंग एथलीट्स के लिए भी, फैंस के लिए भी, और हर वो शख्स जो स्पोर्टिंग इकोसिस्टम से कनेक्टेड है, उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो कि हमें वो विश्वास हो कि वी हैव टू फिनिश एट द टॉप ऑफ द टेबल।
देखिए, ये विश्वास तो आज के खिलाड़ियों में, अगर आप किसी भी खिलाड़ी से बात करेंगे तो ये विश्वास ऑलरेडी उन खिलाड़ियों के अंदर है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या उनको मतलब कि सुविधाओं को लेके उनको कोई भी किसी भी तरह की शंका नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं इतना ही चाहूंगी कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मेजबानी मिली है वो एक बड़ी जिम्मेदारी भी है हमारे देश के ऊपर और स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के ऊपर। तो उसको हम जितना बेहतर तरीके से जो जिम्मेदारी हमें मिली है उस तरीके से लेकर हमारे खिलाड़ी बहुत जोरदार तरीके से मेहनत करें, तैयारियां करें, बेझिझक होके बस एक ही मकसद के साथ तैयारी करें कि हमें देश के लिए मेडल जीतना है। तो निश्चित तौर पर सुविधाओं की किसी भी तरह की, जैसे मनोज जी ने भी बताया कि सुविधाएं की कहीं भी कोई कमी नहीं है। कोई एक खिलाड़ी अगर ये कह दे कि मुझे मेडल जीतने के लिए ये सुविधा नहीं मिली, हर तरह से, चाहे वो अभी नेहरू स्टेडियम को भी आगे बढ़ाना हो, चाहे स्टेट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, मतलब सिस्टम बना दिया है कि अच्छे जो देश के जो युवा खिलाड़ी हैं जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्या नाम नेशनल उसके अंदर लेके आया जाए, चाहे वो खेलो इंडिया से जोड़ा जाए या फिर टैग जो स्कीम है या टॉप टारगेट ओलंपिक पोडियम जो स्कीम है, हर स्कीम के साथ उन खिलाड़ियों को जोड़ा जा रहा है। तो खिलाड़ियों को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। मैं मानती हूँ खिलाड़ी जागरूक हो और उन सब चीजों का अगर किसी तक लाभ नहीं भी पहुंचा है तो वो अपना लाभ लें, क्योंकि सरकार हर तरह का लाभ खिलाड़ियों को दे रही है। तो जागरूक होने की जरूरत है, मैं मानती हूँ। Poonam ji, how are we spreading that awareness? You have the talent, but you need to reach the right platform to avail the opportunities which the system has for you. So, how are we ensuring that the right kind of awareness is spread among the sports persons with the right talent? See, when it comes to awareness, we are awareing all the stakeholders, and when we make sure all stakeholders are aware about all the schemes and all the benefits which are going to to be given to athletes, so it's on right track. Like NSFs, all the national sports federations, whenever there are ACTC planning, annual calendar and training and competitions planning, so NSFs are on board. When it comes to athletes, we have got ARMs, athlete relation managers, for the top scheme athletes. We have got the ARMs for Khelo India athletes. We have got the high performance managers and Sports Authority of India for various schemes. Like we have got HPM for Khelo India scheme. We have got HPM for NCOE athletes. We have got HPM for SAI STC schemes. So these HPMs make sure like all the coaches, athletes, sports sciences are aware about each and everything which is going over in all the schemes. And the PPP model, it's one of the important ingredients which we have get in the last decade. We have got REC, JSW and other collaborations at various SAI centers and with various national sports federations as well. And across that, we organize various grassroots level competitions, talent identification competitions. We provide various foreign exposures to various top athletes and Khelo India athletes for their specific preparation for specific game. So, I mean, overall, we are on right track. And as far as facilities are concerned, so earlier we used to do the hard work. These days, government is also doing the smart hard work along with the athletes. So we just keep do hard working and the results will be there in 2030. Okay, you spoke about public-private partnerships. So just curious to know about the kind of role that the private players are playing today in athlete development and in strengthening the sporting ecosystem in the country. See, as far as PPP model is concerned, I give the example of JSW and SAI collaboration in STC Hisar. So it's like JSW is providing sports sciences support. And also, they are providing various infrastructure whenever required for the athletes. And as far as various private sports person you asked, so they are on board in various NSF schemes. Like you see, various sports person are working with the national teams, and whatever experience they have gained throughout their journey, they are sharing with the athletes. So we have various examples. Rani Rampal is there working in SAI, and I mean many. International decorated sports person are working in national schemes and national camps. So I mean collectively we are on right track, and the major stakeholders NSF, they are also
playing a key role for the development of athletes. You see the example of Neeraj Chopra, PV Sidhu. So I mean, it is all collective collaboration of Ministry of Sports Affairs and Sports, and then NSFs and all the SAI schemes. Absolutely. So while these athletes inspire a lot of youngsters, बबीता जी आप भी एक इंस्पायरिंग फिगर रही हैं, आपको भी देखकर कई सारी ऐसे यंग लड़कियां हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स को अपना एक मेन करियर बनाने का उनके अंदर जज्बा है और उस हिसाब से वो मेहनत भी कर रही हैं। बट कई दफ़ा हम देखते हैं कि अभी भी ऐसे छोटे कस्बों में या कई फैमिलीज़ में एक ये अश्योरेंस नहीं रहती है कि जब आप स्पोर्ट्स को अपना मेन करियर बनाते हैं तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये होप रहती है कि इवन इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन उसका एक स्टेबल ऑप्शन होना चाहिए, यू शुड हैव समथिंग एल्स एज अ प्रोफेशनल करियर। हालांकि काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, पर आपको लगता है कि जब हम 2030 की तैयारी कर रहे हैं, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से अब हम 2030 हम ओलंपिक्स के लिए भी बिड करना चाहते हैं, तो इस तरह के जब इवेंट्स होंगे तो कहीं ना कहीं वो मानसिक बदलाव जिसकी काफ़ी ज़रूरत है हमारे समाज को वो हो पाएगी और इस तरह के इवेंट्स और होंगे तो शायद वो बदलाव और जल्दी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं कहूंगी इस चीज से बहुत बदलाव देखने को भी मिलेगा और यहाँ तक कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा, मैं मानती हूँ इससे एक बहुत बड़ा बदलाव जो है खेल शक्ति के रूप में भारत उभरेगा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से। और जिस प्रकार आपने कहा कि मतलब भय रहता है गांव की लड़कियां जो देहात से आती हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि वो समय चला गया है जब लोग कहते थे कि खेलोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और नहीं सॉरी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। वो कहावत चेंज हो गई है और वो बहुत पीछे छूट गई है। आज की कहावत कुछ इस तरह से है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। और आज हर खिलाड़ी अपने देश के लिए मेडल जीतने का सपना लेकर जो भी खिलाड़ी लगे हैं वो निश्चित रूप पर वो देश के लिए मेडल लेके आएंगे और वो सब खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हैं। अब माता पिता की भी जो है वो भी सोच बदल चुकी है। वो एक जमाना था जब कहते थे लोग कि लड़कियां क्या करेंगी, खेलों के अंदर उनका कोई करियर नहीं या कोई भविष्य नहीं है, लेकिन आज हर माँ बाप भी आश्वस्त है, हर खिलाड़ी भी आश्वस्त है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष की खेल के अंदर भी हम अपना भविष्य अब खिलाड़ी देख रहे हैं कि खेल के अंदर भी हम अपना भविष्य बना सकते हैं और अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं, अपने प्रदेश का भी और माँ बाप का भी नाम रोशन कर सकते हैं और अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल, वो बदलाव अब हम काफ़ी तेज़ी से देख पा रहे हैं। मनोज जी, एज वी रैप अप द कॉन्वर्सेशन, एक लास्ट सवाल आपसे कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है 2030 भी, आगे भी जब हम ओलंपिक्स के लिए बिड करेंगे और अगर हमें होस्ट नेशन चुन लिया जाता है तो एक बहुत बड़ा मौका होगा एक उभरते हुए देश के लिए। इस ऐतिहासिक मौके का फ़ायदा अपने सपनों को बड़ा करने के लिए हमारे जो युवा आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो कैसे उठा सकते हैं, जो एक देखते हैं अपना करियर स्पोर्ट्स में, जिनके अंदर टैलेंट भी है पर झिझकते हैं कि क्या वो स्टेबिलिटी है, क्या राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो देश के लिए या एक एथलीट्स के लिए बड़ा खुशी का पल है कि 2030 इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा। दूसरी बात यह है कि एक एथलीट्स जब गोल्ड मेडल जीतता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, इंडिया का कोई एथलीट्स, उसका नेशनल एंथम गाया जाता, उसमें लाखों लोग आप स्टेडियम में देखे जाएंगे, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि लोगों को कि भाई हमारा बच्चा भी ऐसे ही राष्ट्रीय गान, मेरे बच्चे मेडल जीत के भी राष्ट्रीय गान गा सकते हैं, मतलब वो कर सकते हैं कि पब्लिक में जब देश का राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो लाखों आदमी खड़े होकर सम्मान देते हैं। तो ये एक मैसेज जो जाता है हर किसी को एक मोटिवेशन करता है, हर किसी एथलीट्स को मोटिवेशन करता है, हर किसी गाँव में जो बच्चे एथलीट मतलब खेल नहीं खेलते उनको भी ऐसे लगता है कि भाई हमें भी खेलना चाहिए और हमें हमारी वजह से राष्ट्रीय गान गाना चाहिए। एंड दूसरा ये है कि एक एथलीट्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसका होम क्राउड्स मिलता है। अगर आपके कंट्री में अगर आप हो रहा है तो आपके प्रति एक क्राउड जो है वो आपके फेवर में चिल्लाना पसंद करता है। और नो डाउट्स कि कोई भी अगर आप मेजर गेम्स खेलते हो तो एक कंपटीशन फीवर होता है, हर एथलीट्स को पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन फीवर होता है। उसका एक ही इलाज है कि भाई मुझे अपना बेस्ट करना है और अपने बेस्ट में मुझे मेडल आओ या ना आओ, मुझे सिर्फ अपना बेस्ट करना है। अपने बेस्ट में अगर मेडल आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता। और स्पोर्ट्स हमें एक हारना भी सिखाता है और जीतना भी सिखाता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल नॉलेज आर इन नोट बुक्स, कि जीवन का सारा अनुभव आप किताबों तक सीमित नहीं है। एक खेल का मैदान भी आपको उतना ही देता है जितनी एक
क्लासरूम और बुक्स दे रही है। ऐसी शायद ही कोई ऐसी बुक्स होगी जो हमें हारना सिखाती होगी। एक आपने देखा कि एक एथलीट्स पूरे साल मेहनत करता है और जाते ही कंपटीशन में 1 मिनट में रेसलिंग में हार के बाहर हो जाता है। नेक्स्ट डे उसी जज्बे से फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। ये उसको शायद ही ऐसी कोई बुक्स होगी जो हमें ये मोटिवेशन देती होगी। ये बहुत बड़ा सिर्फ मैसेज है खेल का मैदान ही सिखाता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैसेज है उस हर यंगस्टर के लिए जो एस्पायर कर रहा है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो इंडिया में होंगे उसमें पार्टिसिपेट करे, देश के लिए मेडल लाए। तो थैंक यू वंस अगेन, इट्स बीन एन इंसाइटफुल एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन विद ऑल थ्री ऑफ यू, पूनम जी, बबीता जी, मनोज जी। वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्लेटफॉर्म टुडे टू शेयर योर थॉट्स अबाउट हाउ सिग्निफिकेंट एन अपॉर्चुनिटी it is that India will be hosting the 2030 Commonwealth Games, but equally big is the opportunity for the athletes, for the coaches, because it will be a home crowd. There will be huge expectations from families, from fans, and a moment to deliver. So it is certainly a huge moment of pride that we all look forward to. With that, we'll have to wrap up the conversation. Time allows us to take up only that much on the program. Thank you once again to all of you for joining in and sharing your thoughts. And to you viewers, thank you very much for your time as well. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।